Hello students, welcome back to your geography class for lesson number 3, that is exogenetic processes part 1. Students, we have already started with this lesson and we have completed the introductory part of this lesson, that is what is exogenetic process. As we know that there is some processes which are in the interior of the earth, and just opposite to that some processes are there which are affecting on the exterior of the earth. The processes which affects on the landform, on the external surface of the earth, are known as exogenetic processes. In that we have learned about this definition of exogenetic processes, and after that we are learning that basically it depends, exogenetic processes are mainly caused due to the weathering. So in today's lecture students, we are going to learn first of all about weathering. So what is weathering students? In simple words you can say that the physical and chemical processes that break down the rocks is known as weathering of rocks, or breaking or weathering of rock is a natural phenomena and it is called weathering. That means it is not man-made, it is what affected by some natural phenomena. What are these natural phenomena? How they were affecting, how they are just creating the effect on these rocks and results into weathering. We will see one by one about all that phenomena in detail in our coming lectures. Okay students? So the most important thing which you need to keep in your mind is that breaking or weakening of rocks are called weathering. बहुत ही इजी वर्ड में हम कह सकते हैं कि रॉक्स का टूटना और बिखरना जो अलग अलग रीजंस की वजह से होता है उसे क्या कहते हैं? वेदरिंग. वेदरिंग ऑफ रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स: मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग. In today's lecture students, we are going to learn about mechanical weathering, which is also known as physical weathering. So what is mechanical weathering? The breaking of rocks without any chemical change, like by plant root. That means here no chemical phenomena is used, only natural processes are there. So it is known as mechanical weathering. In that you will see that these rocks are just get broke down. इसकी जो upper layer होती है, outer layer जो होती है, this is what just get break. बहुत छोटे छोटे parts में क्या होती है? divide हो जाती है, break हो जाती है. And the result is that sometimes ये जो mechanical weathering है, इसी में हमको जो है इसके कुछ सब topics पढ़ना है, so that we can understand this more clearly. So in that we are having this exfoliation. So what is this exfoliation? This is what the flaking or stripping of a rock body in a concentric layers. लेयर बाय लेयर क्या होती है? थोड़ी थोड़ी रॉक्स की जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती जाती है? ब्रेक होती जाती है. उसे क्या कहते हैं? फ्लेक्स जो होते हैं वो थोड़े टुकड़े होते जाते हैं. बाहर की लेयर के जो है वो छोटे छोटे टुकड़े जो है वो टूटते जाते हैं और बिखरते जाते हैं. उसे क्या कहते हैं? एक्सफोलिएशन. वाई दिस एक्सफोलिएशन इज इम्पॉर्टेंट इन मैकेनिकल एनर्जी? बिकॉज this is also a type of mechanical energy only, the process by which layer of rock gradually break off. इसमें क्या होता है? थोड़े थोड़े पार्टिकल्स जो होते हैं उस पर इफेक्ट करती जाती हैं और अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इनटू द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स. सो दैट प्रोसेस, एंड व्हाई दिस प्रोसेस ऑकर एक्चुअली? बिकॉज ऑफ द चेंजिंग इन द इंटीरियर एंड आउटर पार्ट ऑफ दैट रॉक. उसके जो रॉक का इंटीरियर और आउटर पार्ट होता है उसके टेम्परेचर वो सब में क्या होता है? बहुत डिफरेंस होता है. एंड इट रिजल्ट्स इनटू द एक्सफोलिएशन. बिकॉज वी नो दैट रॉक का जो आउटर पार्ट होता है, दैट आउटर पार्ट ऑफ द रॉक इज गेटिंग हीटेड फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट लेयर बाय लेयर अगर हम रॉक के अंदर अंदर जाएंगे तो वैसे वैसे हमको क्या फील होगा कि रॉक का इंटीरियर पार्ट जो है वो क्या है? इट इज़ कूलर इन कंपेयर टू द आउटर पार्ट. सो जो आउटर पार्ट होता है रॉक का उसमें क्या होता है? बिकॉज ऑफ गेटिंग एक्सट्रीम हीट कंटिन्यूसली इट गेट ब्रेक डाउन इनटू द लेयर्स. छोटे छोटे फ्लेक्स में या लेयर्स में क्या होती जाता है? वो कट होते जाता है.
या ब्रेक होती जाता है. एंड दस दैट प्रोसेस ऑफ this breaking down of the outer layer of the rock is known as exfoliation. Here you are given with some of the causes of mechanical weathering. These are certain causes because of which this mechanical weathering actually occurs. First one is temperature, frost, crystal growth, release of pressure, and last one is water. All these are the important components which affects the which actually cause the mechanical weathering. We will see one by one about them. First one is temperature. Mechanical weathering can be caused by temperature changes also, as we know that temperature is not same everywhere, and it is on same place also it is not same. It is what varied. ये क्या होता रहता है, हमेशा change होता रहता है. So it can be caused by temperature also. Temperature changes also affect the mechanical weathering, as temperatures heat up the rocks themselves, expand somewhat. As the temperature cools down, the rock contracts slightly, and the effect can be the weakening of the rock itself. जब हीट ज़्यादा मिलती है तो उसका इफेक्ट होता है रॉक पर, जब हीट कम होती है तो उसका भी इफेक्ट होता है. एट सम टाइम इट गेट एक्सपांड, एट सम टाइम इट गेट कॉन्ट्रैक्ट. कभी वो बहुत फैल जाती है, कभी वो क्या होती है, सिकुड़ जाती है. तो ये जो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है रॉक का ड्यू टू द चेंजिंग इन द टेम्परेचर, दैट मीन्स द इंटेंसिटी ऑफ द हीट इज व्हाट चेंजिंग एवरी टाइम, एंड दैट इफेक्ट द रॉक. एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रॉक्स इट गेट वीकेंड. क्या हो जाती है, बार बार फैलने या सिकुड़ने से क्या हो जाती है, वो वीक हो जाती है. एंड दैट्स वाई इट जस्ट गेट रिड्यूस्ड इनटू पीसेस. और बाद में क्या होता है, इसी वजह से जब वो वीक हो जाती है तो वो छोटे छोटे पीसेस में क्या होती है, उसकी वेदरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है. सो टेम्परेचर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मिनरल्स इन द रॉक एक्सपांड बिकॉज ऑफ द हीट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज. एज वी नो दैट सर्टेन मोस्ट ऑफ द रॉक्स आर हैविंग मिनरल्स ऑल्सो. जब हीट मिलती है तो वो मिनरल्स क्या होते हैं, एक्सपांड होते हैं, या फिर होता है ऐसा कि टेम्परेचर कम होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. एंड ईच मिनरल रिएक्ट डिफरेंटली टू द टेम्परेचर. अब मिनरल्स की भी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है. कभी कभी जो है वो कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा हीट रिसीव होने पर एक्सपांड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जितना कूलनेस मिलेगी उतना वो एक्सपांड होंगे. सो अकॉर्डिंगली इट डिपेंड्स ऑन द मिनरल्स विच टाइप ऑफ मिनरल्स एक्चुअली दे आर, एंड अकॉर्डिंग टू दैट either they will expand or they will contract, and this actually resulted into the weathering of the rocks. Next one is frost. See actually students, here I have shown you the diagram which explains you that this is what a rock का एक portion आपको दिया है. In that when cracks form, fractures या cracks जब form हो जाते हैं, so because of this rain or some water bodies, water get filled into that cracks. Okay, after the changing into the temperature, that water which is already percolated in that, or what is already seeps into that crack, जो already वो crack में जमा हो चुका है पानी, that just converted into the ice because it get freezed. जब कूल हो जाता है वाटर को, जब कूलनेस मिलती है, टेम्परेचर रिड्यूस होता है, सो वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू आइस. दैट मीन्स वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है. एंड यू नो दैट, आपको पता होगा कि वाटर जो होता है उसका मास जो है वो क्या होता है, यानी उसको जो है वो उसका वॉल्यूम जो है कम रिक्वायर्ड होता है, लेकिन उसके कंपेयर में वही वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है, सो इट रिक्वायर्स मोर वॉल्यूम, ज़्यादा उसके स्पेस रिक्वायर्ड होता है. सो हियर लाइक दैट ओनली, जब वो वाटर जो है वो आइस बन जाता है यानी बर्फ़ बन जाता है, सो वॉट एवर क्रैक इज़ देयर इन द रॉक, इट नीड्स मोर स्पेस, उसको ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है. एंड दैट्स वाई द रॉक गेट रिड्यूस्ड इनटू द पीसेस. क्या हो जाता है, वो रॉक जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, और दैट इज़ ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ वेदरिंग. ये भी क्या है, एक टाइप की वेदरिंग है. बट दिस इज़ व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस फ्रॉस्ट. सो इन सिंपल वर्ड, जिससे मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, उसी को यहाँ पर एक डायग्राम से बताया हुआ है कि रॉक्स जो है इसमें क्रैक्स थे, क्रैक्स में वाटर क्या हो गया, परकोलेट हो गया. when the temperature reduce from 0 to the 0 डिग्री या उससे भी लेस हो जाता है, तो क्या होता है, वो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है. सो देयर वी कैन सी दैट उसके अंदर जो है वो आइस बन जाता है वो, और उसकी वजह से उसे ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है. सो इट जस्ट रिजल्ट्स इनटू वेदरिंग.
तो फिर रॉक्स के ऐसे पार्टिकल्स जो है वो बारीक बारीक बन के क्या होते हैं, वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, वो ब्रेक हो जाती है. तो दिस इज ऑल्सो द रीज़न of this weathering, because of the creation of the tension as fluctuation in the temperature, because frost जो है उसकी वजह से भी क्या होता है, the volume of the water increases when it freezes and it results into weathering. Okay students, now the next one is crystal growth. See, crystal growth weathering is also a type of weathering which results because it involves a salt crystal growing from the salty water. We know that seas and oceans are there and continuously waves are generating in the seas and oceans, right students? So क्रिस्टल ग्रोथ क्या होता है, कैसे ऑकर होती है, व्हेन सॉल्ट वाटर एंटर्स इनटू अ क्रैक इन द रॉक एंड देन इवेपोरेट. वी नो दैट कंटिन्यूसली जब वेव्स जो है वो टकराती रहती है रॉक से, तो उससे क्या होता है, उसकी कुछ पार्ट की जो है उसकी वेदरिंग हो जाती है. अगर आप किसी कोई ऐसे प्लेसेस पर गए होंगे कोस्ट टाइप, जहाँ पर जो है वो रॉक्स टाइप होता है और कंटिन्यूसली वाटर जो है वो वाटर की वेव्स जो होती है, सी वाटर की वेव्स जो है वो टकराती रहती है. सो यू कैन सी दैट ये जो स्पॉट आपको दिख रहे हैं, होल होल जैसे जो इमेज नज़र आ रहा है, इस टाइप का जो है पूरा रॉक फॉर्म हो जाता है. इफ़ यू विल विजिट टू मुंबई, जैसे आप मरीन ड्राइव है या हाजी अली वगैरह जाते हैं, सो उसमें अगर आप वो जो वाटर बॉडी की साइड वाला जो पार्ट है उस साइड जाते हैं अगर आप, सो यू कैन सी दिस टाइप ऑफ रॉक्स ओवर देयर. आपको ऐसी टाइप की रॉक्स वहाँ पर नज़र आएगी एज इट इज़ रिजल्टिंग ड्यू टू द क्रैक्स फॉर्म. ये से होल जो है फॉर्म हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द सी वाटर्स. सी जो सॉल्टी वाटर होता है ना, उसकी वजह से क्या होते हैं, ऐसे जो है वो रॉक्स फॉर्म हो जाते हैं. बिकॉज ये वाटर क्या होता है, ऐसे पर्कुलेट होता रहता है कंटिन्यूसली जो है वो वेव्स के टकराने से, एंड रॉक्स गेट डिसइंटीग्रेटेड. एंड जब ये सॉल्ट जो है वो उसके अंदर जमा हो जाता है, पानी के साथ जब जमा होता है, सो बिकॉज व्हेन इट गेट्स हीट, तो हीट रिसीव होने से क्या होता है, पानी जो है पूरा इवेपरेट हो जाता है. एंड रिमेनिंग वर्ड सॉल्ट, उसके अंदर क्या बाकी रह जाता है, इट लीव्स द सॉल्ट बिहाइंड सॉल्ट क्रिस्टल्स एंड विच कैन एक्सर्ट फोर्स एंड एनलार्ज द क्रैक्स. ये सॉल्ट जो उसके अंदर जमा होती जाता है, ये क्या करता है, फिर फोर्स अप्लाई करता है. ये क्रिस्टल जो है वो उसके रॉक्स में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर या फोर्स क्रिएट करते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऐसे जो पूरे होल जैसे जो है वो क्या हो जाते हैं, स्मॉल होल जो है वो रॉक्स में फॉर्म हो जाते हैं. एंड इट इज़ व्हाट बिकॉज ऑफ द एल्कलाइन वाटर गेट स्टोर्ड इनटू द होल्स. वो जो सॉल्टी वाटर होता है ना, वो होल में जमा होने की वजह से वो क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, और इसकी वजह से भी क्या होती है, इस तरह की वेदरिंग जो है वो फॉर्म होती है. ओके, नेक्स्ट वन इज रिलीज ऑफ प्रेशर. सी स्टूडेंट्स, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग व्हेन एक्सट्रीम प्रेशर इज exerted because of temperature, freezing of water or crystallization. Any of the reason will be there for creating the tension or this pressure on the rocks. So we can say that as a erosion removes the material from the surface, as a mass of rock pressure, the rock is reduced. This release of the pressure causes outside of the rock to crack, and actually it results into the we can say that formation of the weathering, just like the layers of the onion देखा है आपने, उसकी लेयर बाय लेयर कैसे उसकी अगर हम उसकी बहुत सारी लेयर्स होती है ना, तो एक एक लेयर अगर हम हटाएंगे तो बहुत सारी लेयर्स हमको नज़र आएगी. तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होती है, लेयर बाय लेयर जो है उसकी वेदरिंग होती है. बिकॉज कि आउटर लेयर जो होता है इसका प्रेशर जो है कहाँ जाता है, इनर लेयर्स पर जाता है. एज बहुत सारी जो लेयर्स होगी, सबसे पहले वाली लेयर का प्रेशर उसके नीचे वाली लेयर पर जाएगा, फिर उसके बाद वाली लेयर का उसके नेक्स्ट वाली लेयर पर जाएगा. सो लाइकवाइज ये जो अपर लेयर होती है उसका प्रेशर क्या होता है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है वहाँ तक जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है. एंड जो एकदम इनर लेयर होती है, व्हेन दिस प्रेशर ceases to exist, the lower or the inner layer get freed from the pressure. This lead to the weathering. और जब वो एकदम इनर लेयर तक पहुंच जाता है प्रेशर, तो फिर वो क्या होता है, इट रिजल्ट्स इनटू वेदरिंग. सो प्रेशर इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ वेदरिंग. नेक्स्ट वन इज मैकेनिकल वेदरिंग ड्यू टू वाटर. सी in the heavy rainfall region, soaking of rock caused weathering of rocks.
जहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होती है तो वहाँ पर क्या होता है, मोस्टली वाटर गेट परकोलेटेड और सीपेज्ड into the rocks, right? Pressure on the agglomeration of the sand particles, a mud makes sand particles come together. मोस्टली कैसा होता है कि ये जो रॉक्स होती है, these were formed due to the pressure, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं, सैंड पार्टिकल्स या मड पार्टिकल्स वगैरह जो होते हैं, they just came together and when water penetrates such rock, the particle get loosed and separate from the main rock. मेन रॉक जो होती है उसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ द हेवी रेन, ये जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं या मड वगैरह होता है, ये सब क्या होता है, ये पूरा जो है उसके ऊपर जो रॉक का जो पार्टिकल था उसमें जमा होते जाता है और एक कंप्लीट रॉक जैसा फॉर्म हो जाता है. बट इट वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट? एज वेन एवर वेदरिंग कॉज, किसी भी रीज़न से जो है वो, या जब पानी जो है वाटर वैन परकुलेट्स या पेनिट्रेट होता है जब ऐसी रॉक्स पर, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो मड या सैंड वगैरह जो है वो पूरा जो जमा हो गया था या पूरा एक कलेक्ट हो गया था, पूरा एक पार्टिकल जो है वो एक साथ जमा हो गए थे, दे जस्ट गेट सेपरेटेड. वो क्या होता है, फिर लूज होकर जो है वो सेपरेट होने लग जाते हैं. एंड दिस रिजल्ट्स इनटू द ग्रैनुलर वेदरिंग. इसकी वजह से क्या होती है, ग्रैनुलर वेदरिंग होती है. सी दिस इज द पिक ऑफ ग्रैनुलर वेदरिंग. सो granular weathering or the disintegration is a form of weathering where the grains of the rock become they just become disintegrated. वो क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट में जो है वो डिसइंटीग्रेट होने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ द वाटर एंड इट रिजल्ट्स इनटू दिस टाइप ऑफ वेदरिंग. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट वन इज block disintegration. Sometimes both temperature and water are responsible for weathering. कभी कभी ऐसा भी होता है कि टेम्परेचर तो इफेक्ट करता है, अल्टीमेटली अलॉन्ग विथ टेम्परेचर वाटर ऑल्सो इफेक्ट्स द रॉक्स एंड डिफरेंस इन टेम्परेचर कॉज कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन वाइडनिंग द जॉइंट्स और द क्रैक्स इन द रॉक्स. टेम्परेचर में चेंजेस होगी तो क्या होता है, जो रॉक्स होगी उसमें जो फ्रैक्चर्स होते हैं या उसमें जो क्रैक्स होते हैं, आइदर दे विल बी एक्सपांड और दे विल बी कॉन्ट्रैक्ट, या वो फैलेंगे या वो सिकुड़ जाएंगे. इट रिजल्ट्स इनटू द वाइडनिंग ऑफ द क्रैक्स. वो क्रैक्स जो होते हैं उसमें से क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, फैल जाते हैं. वाटर एक्यूमुलेट्स इन सच वाइड जॉइंट्स. अब ऑलरेडी टेम्परेचर की वजह से क्या हो गया, वो जो क्रैक्स थे वो स्प्लिट हो गए, वो और ज़्यादा जो है वाइड हो गए और उसमें क्या हो गया, वाटर जो है वो जमा हो गया. एंड दस बिग ब्लॉक्स ऑफ रॉक सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. तो बड़े बड़े जो पार्ट होते थे रॉक के वो क्या हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर ऑफ द वाटर इट गेट सेपरेटेड. तो बड़े बड़े जो है वो रॉक के पार्ट क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, बड़े बड़े जो है इसके अंदर क्रैक्स फॉर्म होने की वजह से. एंड दिस इज कॉल्ड ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन. इस टाइप की वेदरिंग को क्या कहते हैं, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन. सो स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीटेड विथ आवर first type of weathering, that is mechanical weathering. In a coming lecture we will start with chemical weathering. What is chemical weathering, what are the different components of chemical weathering and how it leads to weathering, you will see in our coming lecture. Thank you students.